Hello friends, welcome again to my channel for 11th Commerce and 12th Commerce. Today we are going to do chapter number 2 Money from 11th Economics new syllabus. This is for 11th Economics Commerce. Okay, chapter number 2 Money. In my previous video of 11th Economics we had done chapter number 1. Now we are going to start with chapter number 2. As you can see from the screen, this is a very easy and a small chapter which concerns about money. Okay, it's a practical chapter, everybody knows about it. It is just we are going to see the history and the future of money. Okay, so let us begin with the chapter money. So as you can see from the screen, this is the same textbook page number of your chapter number 2 money, and besides the chapter page number you can see some pictures which I have shown for your explanation, for your better understanding. First of all, let us see what does this chapter begin with and what does this chapter says. As you can see from this page, the first part is of introduction. Here we have been introduced to money. What does money mean? Okay, so here we are going to see the history part, the history part of money. So man is an intellectual animal. The invention of money is one of the most important and fundamental invention out of various inventions in the world. Okay, so as everybody knows, the invention of money was a fundamental main invention. It was a game changer, okay, for Indian or for any economy in this world. उसमें आगे लिखा है कि अकॉर्डिंग टू क्राउदर देर इज अ बेसिक इन्वेंशन इन ईच ब्रांच ऑफ नॉलेज. एग्जाम्पल, इन्वेंशन ऑफ फायर इन साइंस, invention of wheels in mechanical science. Concept of money is an important concept which has brought about a revolutionary change in the economic life of human beings. Okay, various goods and services are bought and sold with the help of money to satisfy human wants. Modern economy is it is dependent on money. So everybody knows. देखो पहले भी आपको स्कूल लाइफ में भी बताया होगा साइंस में जो इन्वेंशंस हुए थे, ठीक है, मैकेनिकल साइंस में यहाँ पे एग्जांपल दिया है फायर, व्हील, स्टीम इंजन, वॉट एवर. ओके, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एवरीथिंग. बट द इन्वेंशन ऑफ मनी वॉज अ रिवोल्यूशनरी इन दिस होल वर्ल्ड. ओके, so money is in circulation today which was created to reduce the difficulties in barter system. So first of all we are going to see what is a barter system. बार्टर सिस्टम क्या था? ओके, बार्टर सिस्टम का सिंपल मतलब है गुड्स के बदले गुड्स. ओके, गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स. सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बार्टर एक्सचेंज. एज यू कैन सी हियर फ्रॉम द पिक्चर, दिस मैन is giving something. He has a packet of something and he is taking in exchange fish. Okay, so that is called as barter system because in previous era there was no money. Okay, there was no medium of exchange. So what people used to do is they used to exchange goods for goods. Okay, for example, I have a goat and I need rice. So what will I do? I will give my goat away to some person who has rice, as you can see from the picture. So in that period goat was equal to rice because they meant so. Okay, so there was no certain value. Today we know that goat's value is more than rice, but at that period of time, because there was no medium of exchange, because there was no value for money, so they exchanged goods for goods. Okay, so as you can see from the picture here also, is exchanging some packets for a hen or a cock. Okay, so here you can see in the second picture there is a cartoon picture given here, okay, how a birth of free economics took place. Okay, so here one person is thinking, I wish I had a rock, because that person in front of him is having a rock, and that person, that particular person who is having a rock, he thinks, okay, I wish I had a stick. Okay, so here they are mutual wants, they used to satisfy with their mutual needs. Okay, so that was called as barter system. Barter system का मीनिंग देखो ऊपर पहले ही लाइन में दिया है. Barter system, it refers to exchange of goods for goods. Now there were many difficulties in barter system. Okay, so the first question of this chapter is this only, okay, what are the difficulties in barter system. So first of all let us see barter system में क्या क्या difficulties था. Number one, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए को राइस चाहिए था और मिस्टर बी के पास गोट है. ओके, बट मिस्टर बी के पास दोनों एक को राइस चाहिए था, एक को गोट चाहिए था. ओके, बट अगर उनके पास राइस नहीं है, गोट नहीं है, तो उनके पास डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होगा. ओके, बिकॉज दे डोंट हैव द थिंग विच दे नीड. सो लेट अस सी. Lack of double coincidence of wants was one of the major limitations of barter system. For instance, a person A has cloth and he wants rice in exchange from a person B has rice, but he does not want cloth.
ओके किसी एक को जरूरत है बट किसी दूसरे को जरूरत नहीं है, तो वो अपनी चीज एक्सचेंज क्यों करेगा? In this case, exchange between A and B would not take place because their wants do not coincide with each other. Okay? दोनों की wants अलग है. Okay? किसी एक को क्लॉथ चाहिए था, राइस उसके पास है, लेकिन सामने वाले को क्लॉथ नहीं चाहिए, तो दोनों का want टेक प्लेस नहीं होगा, एक्सचेंज टेक प्लेस नहीं होगा. सेकेंड, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आज की तारीख में मनी इज द कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, बट उस जमाने में मनी पैसा था ही नहीं, तो मेजर ऑफ वैल्यू क्या होगा? कुछ भी नहीं. ओके, दे यूज्ड टू जस्ट डिफाइन अ थिंग ऑन द वैल्यू, ऑन द क्वांटिटी. ओके, while exchanging goods for goods, there was no standard unit of account to determine the value of commodity. Example, it was difficult to compare 2 liters of milk with 2 kilograms of rice. Okay, now in mathematics also, in science also, we know that liters is different and kilograms is different. So in that period, how it was very difficult to compare 2 liters of milk to 2 kilograms of rice. Okay, because in weight, quantity, quality, everything was different. Okay, so that was lack of common measure of value. Now today, in today's period, we have कि भाई 1 लीटर दूध का 50 रुपीज़ है फॉर एग्जाम्पल, एंड 1 किलो राइस 40 रुपीज़. ओके, फॉर एग्जाम्पल. सो वी हैव अ मेजर ऑफ वैल्यू, बट इन दोज पीरियड दे डिड नॉट हैव एनी मेजर ऑफ वैल्यू. थर्ड, डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स. It is necessary to store goods for future consumption. Sometimes due to perishable nature of certain goods, it was difficult to store them for future. Perishable commodities like milk, fish, eggs, vegetables, etc. were difficult to store. Difficulties were also experienced due to lack of space required to store heavy and bulky goods. So perishable goods सबको पता होगा. perishable goods क्या होता है? वो सारे गुड्स जिसको हम लोग को तुरंत कंज्यूम करना पड़ता है विद इन 1 डे और विद इन सम आवर्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल फिश, मीट, आइसक्रीम, मिल्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल द डेयरी प्रोडक्ट्स ऑल्सो. ओके, वी हैव टू कंज्यूम देम एज अर्ली एज पॉसिबल, अदरवाइज दे विल पेरिश. सो दीज आर ऑल कॉल्ड एज पेरिशेबल गुड्स. तो उस जमाने में पेरिशेबल गुड्स हुआ करते थे. यस, मीट, फिश, ओके, वेजिटेबल्स, मिल्क, ये सारे पेरिशेबल गुड्स उस टाइम पे भी हुआ करते थे. तो उसको स्टोर करना बहुत मुश्किल था. उस जमाने में रेफ्रिजरेटर तो था नहीं. ओके, सो स्टोर करना बहुत बड़ी बात थी, बहुत मुश्किल था, और जब तक किसी दूसरे को उसकी जरूरत ना हो तब तक वो स्टोर करना बहुत मुसीबत वाला काम था. इसके लिए देयर वाज डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स. इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स. नाउ सबसे पहले आज तो क्या है, मनी, द करेंसी इज डिविजिबल इन स्मॉलर डिनोमिनेशंस. ओके, एज वी नो हमारे पास 1 रुपया भी है और 2000 की भी नोट्स है. ओके, सो इन बिटवीन वी हैव ऑल द डिनोमिनेशंस ऑफ द करेंसी. तो हम लोग जो चीज़ चाहिए उसको डिनोमिनेशन में ले सकते हैं, बट उस जमाने में तो करेंसी था ही नहीं, तो गुड्स को ही मनी के तौर पे यूज करते थे. तो इनविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स की वजह से तो उनको वैल्यू का ठिकाना नहीं होता था. इन बार्टर सिस्टम इट वॉज इनकन्वीनियंट टू डिवाइड एनिमल्स, हाउस एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक काव है, ओके, और मुझे सिर्फ राइस चाहिए, तो क्या मैं पूरी काव दे दूंगा सिर्फ थोड़े से राइस के लिए? नहीं ना, ठीक है. और उस काव को तो मैं डिविजिबल नहीं कर सकता हूँ, गोट को तो मैं डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज इट इज अ लिविंग एनिमल. ओके, सो कहने का मतलब है बहुत सारे गुड्स ऐसे हुआ करते थे जिसका डिविजिबिलिटी नहीं होता था. ओके, वहां पे देखो एग्जाम्पल दिया है नीचे. एग्जाम्पल, इंडिविजुअल ए मीन्स पर्सन ए हैज अ सैक ऑफ व्हीट एंड ही वांट्स गोट इन एक्सचेंज. इंडिविजुअल बी हैज अ गोट एंड ही वांट्स ओनली हाफ अ सैक ऑफ व्हीट. अभी सामने वाले के पास गोट है, ओके, बट उसको सिर्फ हाफ सैक ऑफ व्हीट चाहिए, तो क्या वो हाफ गोट देगा सामने? नो, इट वॉज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टन गुड्स. ओके, सो दैट वॉज द प्रॉब्लम ऑफ इनडिविजिबिलिटी. Problem of making deferred payments. Now what is deferred payments? Payments which you can make in future, that is called as deferred payments. Deferred payments means payment to be made in future. Repayment of loan was difficult due to exchange of commodities. अभी इस आज के ज़माने में तो सब उधार लेते हैं, उस ज़माने में भी उधार लेते थे. ओके, कैसे लेते थे? ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास गोट है, मुझे राइस चाहिए, ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने वो गोट किसी और को दे दिया था, अभी मुझे राइस की ज़रूरत है, तो मैं वो राइस वाले को क्या कहूँगा, मेरे पास दूसरा गोट आएगा तब मैं तुझे दे दूंगा, तब तक तू मुझे राइस दे दे. ओके, सो टिल देन प्लीज गिव मी द राइस, वेन एवर आई हैव अ गोट आई विल गिव इट टू यू. सो दिस इज कॉल्ड एज डिफर्ड पेमेंट. मैं आपको फ्यूचर में वादा करता हूं कि मैं फ्यूचर में आपको गोट सप्लाई करूंगा, मुझे आज अभी राइस चाहिए. सो उस जमाने में भी उधार ऐसा चलता था, तो ये डिफर्ड पेमेंट हुआ करता था. बट रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ दिस कमोडिटीज और वॉट एवर यू कॉल, वॉज
डिफिकल्ट ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज. ओके, सो ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट था बार्टर सिस्टम के अंदर, और ऑल दिस डिफिकल्टीज यूज टू क्रिएट मेनी प्रॉब्लम्स इन बार्टर सिस्टम. ओके, सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस डिफिकल्टीज, ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस डिफिकल्टीज दुनिया में क्या आया? मनी. ओके, इवोल्यूशन ऑफ मनी. नाउ दिस इज द सेकेंड पेज ऑफ योर सेम चैप्टर. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक एरो रखा है दोनों तरफ बताने के लिए कि आपको नीचे से ऊपर देखना है. ओके, इवोल्यूशन ऑफ मनी में आपको नीचे से ऊपर देखना है. जो भी चार्ट दिया है, ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, ये जो चार्ट दिया है वो भी आपको नीचे से ऊपर देखना है, और ये जो लिखा है वो भी आपको नीचे से ऊपर पढ़ना है. तो आपको पता चलेगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं. ओके, तो कहने के लिए हम लोग जो ये करने वाले हैं, जो भी चैप्टर का पूरा पढ़ने वाले हैं, उसमें आपको यही करना है कि इवोल्यूशन ऑफ मनी कैसे हुआ, और उसको आपको चार्ट को नीचे से ऊपर की तरफ देखना है. ओके, सो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विथ इवोल्यूशन ऑफ मनी. अभी मनी क्यों इवॉल्व हुआ? मनी इवॉल्व हुआ बिकॉज हमने पहले ही देखा इस चैप्टर में, बिकॉज ऑफ बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, इसके लिए वी नीडेड some measure of value, that was the evolution of money. So what is the definition of money? प्रोफेसर क्राउदर क्या कहते हैं, देखो, money is anything that is generally acceptable as a means of exchange and at the same time acts as a measure of store और value. ओके, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें, मनी की जो दोनों क्वालिटीज होती है वो यहाँ पे दिया है, measure of exchange and store of value. तो दोनों में आपको मनी का एग्जाम्पल आपको साफ नजर आता है. प्रोफेसर वॉकर का डेफिनेशन एकदम सिंपल है, सिंगल लाइन में, मनी इज व्हाट मनी डज. सिंपल, मनी वो है जो मनी करता है. ओके, पैसा वो है जो पैसे का काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज मनी. सिंपल डेफिनेशन है, आप दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन कर सकते हो. नाउ लेट अस सी इवोल्यूशन ऑफ मनी. ओके, इवोल्यूशन ऑफ मनी आपको ये जो चार्ट दिया है उसको नीचे से ऊपर देखना है, मैंने पहले ही बताया. सबसे पहले क्या इवॉल्व हुआ था? एनिमल मनी. ओके, बार्टर सिस्टम में क्या यूज होता था? एनिमल मनी. एज वी हैव सीन अर्लियर, गोट फॉर काउ, काउ फॉर राइस, मिल्क फॉर राइस, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो जो भी होता था टाइप्स ऑफ मनी के अंदर पहले एनिमल को यूज किया जाता था. इन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एनिमल मनी वॉज यूज एज मीन्स ऑफ एक्सचेंज. एग्जाम्पल काउ, शीप, गोट एक्सेट्रा. हाउएवर ड्यू टू इंडिविजिबल इन नेचर कमोडिटी मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस. तो पहले तो एनिमल को ही एक्सचेंज किया जाता था, उसके बाद क्या आया? कमोडिटी. कमोडिटी में भी पैसे का चलन नहीं हो रहा था, वहां पे भी वस्तु, चीज का चलन हो रहा था. तो क्या क्या हो रहा था उसमें देखो. सेकेंड पॉइंट, कमोडिटी मनी. इन ओल्डन डेज द कमोडिटीज टू बी यूज्ड एज मनी वर डिपेंडेंट अपॉन क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड कल्चर. एग्जांपल, एनिमल स्किन, ग्रेन्स, शेल्स, फेदर्स, टस्क, टस्क यानी हाथी के जो दांत होते हैं, सॉल्ट, रेयर आर्टिकल्स, स्टोन्स वर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज सच कमोडिटीज एंड मेटालिक मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस. ओके, तो उस जमाने में एनिमल्स के बाद लोग क्या यूज करने लगे? कमोडिटीज. जैसे कि आप बीच पे जाते हो, समुद्र पे जाते हो, तो आपको शेल्स नीचे पड़े हुए दिखते हैं. ओके, उनकी कोई वैल्यू नहीं है आज की तारीख में, बट उस जमाने, एक जमाने में शेल्स को भी मनी के तौर पे यूज किया जाता था. ओके, कौड़ी बोलते थे उसको, कौड़ी, उसको शेल्स को भी मनी के तौर पे यूज किया जाता था. शेल्स थे, एनिमल स्किन था, टस्क, एलिफेंट के जो टीथ होते, दांत होते थे, उसको भी यूज किया जाता था. तो ये सारी चीजें, सॉल्ट, सॉल्ट वाज आल्सो यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ओके, इन वन पीरियड ऑफ टाइम. तो इन सब चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम होता था. इन सब चीज़ों को, प्रॉब्लम को मिटाने के लिए क्या लॉन्च किया गया था? मेटालिक मनी. ओके, मेटल फ्रॉम, मेड फ्रॉम मेटल्स. मेटालिक मनी सिंपल है, मेड फ्रॉम मेटल्स. तो व्हाट मेटल्स, आगे देखते हैं. मेटालिक मनी यूज्ड ड्यूरेबल मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल एक्सेट्रा. ओके, तो ये सारी चीज़ों से मेटालिक मनी बनाई जाती थी. मेटालिक मनी में, मेटालिक मनी के अंदर जो भी है वो ये सब धातु का इस्तेमाल किया जाता था. However, scarcity of precious metals and lack of uniformity in metallic places gave rise to the use of metallic coins. ये सारे जो मेटल्स थे, उससे जो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम से जो सिक्के बनाए जाते थे. ओके, राजा महाराजाओं के ज़माने में भी आपने देखा होगा, मूवीज, सीरियल्स वगैरह में भी देखा होगा, हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा. ठीक है, गोल्ड कॉइन्स जिसपे राजा महाराजाओं का पिक्चर आता था, ठीक है, उसकी मोहर लगी हुई होती थी. तो ये सारी चीज़ें वो बनाते थे और अपने लोगों में बांटते थे. ठीक है, एंड दैट यूज्ड टू बी यूज्ड एज मनी. उसके बाद मेटल्स के बाद डायरेक्ट मेटालिक कॉइन्स का जन्म हुआ. ओके, मेटालिक कॉइन्स. थर्ड पॉइंट देखिए, मेटालिक मनी, फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट, मेटालिक कॉइन्स. इन एंशिएंट टाइम्स
Rulers of various kingdom used small pieces of metals, affixed their seals on them. With the passage of time, the monetary system was taken over by the government authorities with a view to give uniformity and legal status to metallic coins. Coins can be classified as under. तो मैंने पहले ही जैसे बताया आपको, मेटालिक मनी के बाद जो मेटालिक कॉइन्स आए उस पर राजा महाराजाओं की मुहर लगी हुई होती थी, उनका पिक्चर लगा हुआ होता था, ठीक है, उनका जो भी लैंग्वेज में जो रीजनल लैंग्वेज था उसमें कुछ भी लिखते थे, और वो मेटालिक कॉइन्स अपने प्रजा में बांट दिए जाते थे और वो उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज़ किया जाता था. आज की तारीख में भी हमारे पास कॉइन्स है, येस वी यूज़ कॉइन्स, ओके. तो जो इंडियन करेंसी में हम लोग को कॉइन्स भी है, तो कॉइन्स भी हम लोग यूज़ करते हैं, बट दैट कॉइन्स हैव टू डेफिनेशंस, ओके. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉइन्स. तो क्या क्या है वो देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है. स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स एंड टोकन कॉइन्स. ये आपको शॉर्ट नोट, कॉन्सेप्ट, डिस्टिंग्विश में भी पूछ सकते हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टैंडर्ड कॉइन्स एंड टोकन कॉइन्स, ओके. सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा. सो व्हाट आर स्टैंडर्ड कॉइन्स, फुल बॉडीड कॉइन्स, उसका पढ़ लीजिए, पढ़ के देख लेते हैं, बाद में बताता हूँ क्या है वो. Full bodied coins are those coins whose face value is equal to their intrinsic value. Face value indicates the exchange value fixed by the issuing authority. These coins are made out of precious metals like gold, silver, etc. Standard coins were used for some days during the British period. Okay? तो कहने के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू, अभी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू उसको बनाने की वैल्यू है, उसको बनाने का खर्चा, ओके, उसको कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू. फेस वैल्यू का मतलब क्या है? उस सिक्के के ऊपर कौन सा डिनोमिनेशन लिखा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग इंडियन कॉइन्स की बात करते हैं तो इंडियन कॉइन्स का 1 रुपये का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओके. इंडियन कॉइन्स 1 रुपये, अभी देखो यहाँ पे फोटो रखा है मैंने, 1 रुपये का कॉइन. अभी ये 1 रुपये का कॉइन गवर्नमेंट को बनाने के लिए अगर 1 रुपये 25 पैसे पड़ता है, ठीक है, समझो इस बात को, 1 रुपये का कॉइन को बनाने के लिए गवर्नमेंट का खर्चा पर कॉइन 1 रुपये 25 पैसे पड़ता है, तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है, फेस वैल्यू कम है. क्योंकि फेस वैल्यू कितना है? ओनली ₹1 जो लिखा है वहाँ पे, ओके. फेस वैल्यू इज व्हाट इज विजिबल ऑन इट्स फेस, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू. तो कॉइन पे कितना वैल्यू लिखा है? 1 रुपये. लेकिन उसको बनाने का खर्चा, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू अगर 1 रुपया 25 पैसा पड़ता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फुल बॉडीड कॉइन्स या टोकन कॉइन्स कहेंगे, ठीक है. बिकॉज देयर फेस वैल्यू इज इक्वल टू देयर, सॉरी, फेस वैल्यू इज इक्वल टू देयर इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है. उसकी वैल्यू दोनों सेम है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स कहेंगे. टोकन कॉइन्स किसको कहेंगे? Those whose face value is higher, जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया, 1 रुपया सिक्के को बनाने के लिए 1.25 का खर्चा होता है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? टोकन कॉइन्स. और 1 रुपये का सिक्के को बनाने के लिए अगर 1 रुपया ही खर्चा होता है, तो उसको क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स, ओके. सो स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स में क्या होता है? फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू. लेकिन टोकन कॉइन्स में क्या होता है? फेस वैल्यू इज हायर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है. तो ये दोनों का आपको फर्क जानना है, क्योंकि ये दोनों आपको पूछा जाएगा, आपको डिस्टिंग्विश के अंदर, कॉन्सेप्ट्स के अंदर पूछा जाएगा, ओके. अगेन मूविंग फॉरवर्ड, इंट्रिंसिक वैल्यू का ही यहाँ पे दिया है, फेस वैल्यू इज मोर देन देयर इंट्रिंसिक वैल्यू. These coins are made from cheaper metals like aluminum, nickel, etc. These coins are lower denomination and are generally used for setting smaller transactions. In India, all coins in circulation today are token coins. Okay? आज की तारीख में हम लोग जो coins यूज करते हैं, okay, मे बी 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, ये सारे coins, ठीक है, वो कौन से है? इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी क्या है? कम है, फेस वैल्यू से इक्वल हो सकती है, कम हो सकती है, इसके लिए उसको हम लोग टोकन कॉइन्स कहते हैं. और इंडिया में आज की जो भी कॉइन्स है वो कौन से कॉइन्स है? टोकन कॉइन्स. दे आर नॉट स्टैंडर्ड कॉइन्स, फुल बॉडीड कॉइन्स, दे आर कॉल्ड एज टोकन कॉइन्स बिकॉज फेस वैल्यू इज आइदर इक्वल, ओके, और इंट्रिंसिक वैल्यू इज लोअर देन द फेस वैल्यू. तो उसको बनाने का खर्चा उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा नहीं है, इसके लिए उसको क्या कहेंगे हम लोग? टोकन कॉइन्स कहते हैं, ओके. सो एज यू कैन सी हियर, इंडिया के अंदर जो भी करेंसी है, अभी तो फिलहाल न्यू करेंसी आ चुकी है, बट कॉइन्स आज भी चलता है, तो कॉइन्स को हम लोग टोकन कॉइन्स कहते हैं. तो कॉइन्स के बाद क्या आया? बिकॉज कॉइन्स वर वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट, वेरी डिफिकल्ट टू कैरी, सो उसके लिए किसका जन्म हुआ? पेपर करेंसी का, जो आज हम लोग यूज करते हैं. पेपर मनी वॉज सब्स्टिट्यूट फॉर अ मेटालिक मनी. इन कोर्स ऑफ टाइम, इश्यू ऑफ करेंसी नोट वॉज मोनोपोलाइज्ड बाय द सेंट्रल बैंक.
Now what, who is central bank? Central bank is nothing but Reserve Bank of India. In India we call central bank as Reserve Bank of India. Central Bank of India एक अलग बैंक है, ओके, उसका नाम ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, बट central bank is called as the Reserve Bank of India, which is the main private central bank which controls all the banks in the country. ओके, सो करेंसी भी सबको पता है, करेंसी भी कौन छापता है, कौन प्रिंट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आगे देखो क्या लिखा है, इन इंडिया 1 रुपी नोट एंड ऑल द कॉइन्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अभी आपने गौर से देखा होगा तो हमारी जो भी करेंसी है, फॉर एग्जाम्पल आज हमारे पास जो करेंसी है वो यहाँ पे मैंने लिखा बताया आपको, आज हमारे पास कौन सी करेंसी है, राइट फ्रॉम ₹1. ओके, मैं पेपर मनी की बात कर रहा हूँ, कॉइन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पेपर मनी की बात कर रहा हूँ. पेपर मनी जो हमारे पास है वो आज क्या है हमारे पास, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000. ओके, तो ये सारे करेंसी के डिनोमिनेशन है. लेकिन आपने गौर किया होगा, आपने कभी देखा होगा ध्यान से, तो ₹1 की जो नोट होती है, 1 रुपी की जो नोट होती है, 1 रुपी की जो नोट होती है वो सिर्फ कौन प्रिंट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, नॉट रिजर्व बैंक. कॉइन्स, all the coins of all denominations and ₹1 की करेंसी नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है, और 1 रुपी के ऊपर ये सारी करेंसी आपको जो ऊपर दिख रही है वो सारे कौन प्रिंट करते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो आपके पास अगर 1 रुपी का नोट होगा तो उस पर देख लेना, कहीं पे भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखा होगा, उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होगा. और 1 रुपी के ऊपर की जो नोट होगी उस पर सभी पे क्या लिखा होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. 1 रुपी की जो नोट होती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं छापती है, वो प्रिंट नहीं करती है, वो कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सारे कॉइन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1 रुपी नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है. बाकी 1 रुपी नोट के ऊपर का जो डिनोमिनेशन होता है 2 रुपीज से लेके ऊपर, ठीक है, वो सारे के सारे कौन प्रिंट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. 6th, बैंक मनी और क्रेडिट मनी. ओके, आफ्टर पेपर मनी हमारे पास क्या आया? बैंक मनी और क्रेडिट मनी. ठीक है, नाउ व्हाट इज बैंक मनी? जो बैंक में है. ओके, क्रेडिट मनी जो उसको हम लोग क्रेडिट के तौर पे यूज करते हैं. बैंक मनी रिफर्स टू द डिपॉजिट्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ कैश सेव्ड बाय द पीपल. अगर फॉर एग्जांपल आपके पास घर पे 50,000 पड़े हैं कैश में, करेंसी में, उसी को आपने बैंक में जमा कर दिया, तो वो पहले क्या आता है? पेपर मनी. बैंक में जमा करने के बाद क्या हो गया? वो आपकी बैंक मनी हो गया. ओके, सो इट इज नथिंग बट द करेंसी मनी विच यू डिपॉजिटेड इन द बैंक, इट गेट्स कन्वर्टेड टू द बैंक मनी एंड विच यू कैन यूज एज अ क्रेडिट. It is used to create credit money. This can be withdrawable and transferable on demand by means of check, demand draft, etc. Check, demand draft are not actual money but credit instruments. For example, आपने देखा होगा चेक इश्यू करते हैं. चेक इश्यू कब करते हैं हम लोग? जब बैंक में पैसा होगा, हमारे अकाउंट में पैसा होता है, उसको हम लोग चेक के तौर पे ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं. आज की तारीख में तो नेट से भी कर सकते हैं, बट एक चेक एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप दूसरों को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं. अपनी ही अकाउंट का पैसा दूसरे के अकाउंट में चला जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स. Credit money plays an important role in economic development. On the background of global economy, cashless transactions gained importance, thereby giving rise to the plastic money. Okay? ये जो पेपर करेंसी के ट्रांजैक्शंस थे वो एक ज़माने में बहुत चलते थे. कैश सब कुछ कैश पे ही होता था. लेकिन 2016 में सबको पता है क्या हुआ था? डीमोनेटाइजेशन. ओके, 2016 में डीमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट ने किया था. 500 और 1000 की पुरानी नोट्स को बंद कर दिया था, बैंड कर दिया था, और फिर हम लोग को नए नोट्स 500 और 2000 के मिले. ओके, तब से लेके आज तक कैशलेस ट्रांजैक्शंस का जो वॉल्यूम्स था वो कम हो गया और डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ने लगे. ओके, तो वो क्यों किया था डिमोनेटाइजेशन, उसका भी पार्ट हम लोग इस एंड चैप्टर के एंड में देखने वाले हैं. बिकॉज ऑफ ब्लैक मनी. ओके, सो लेट अस सी आगे. 6th पॉइंट ये पूरा बैंक मनी के ऊपर था. प्लास्टिक मनी. प्लास्टिक मनी, अभी प्लास्टिक मनी का मतलब ये नहीं कि मनी मेड ऑफ प्लास्टिक, नो. ओके, प्लास्टिक मनी किसको कहा जाता है? डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड्स. ओके, आज के जमाने में जो हम लोग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उसको कुछ नहीं बट क्या कहते हैं? प्लास्टिक मनी. एज यू कैन सी हियर, प्लास्टिक मनी किसको कहते हैं? डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स. आज की तारीख में मैक्सिमम सब लोगों के पास ये होता है. आपके पास नहीं होगा, आपके पेरेंट्स के पास हो सकता है, या आपके पास भी हो सकता है. अगर आपका अकाउंट है, माइनर अकाउंट होगा, 18 ईयर्स के नीचे हो आप, फिर भी अकाउंट खोल सकते हो. माइनर अकाउंट कहते हैं उसको, ठीक है. लेकिन आपको जो कार्ड आएगा वो आपके पेरेंट्स के नाम पे आएगा. फिर 18 ईयर्स के हो जाने के बाद आपको अपना खुद का कार्ड मिल सकता है. तो ये जो भी डेबिट कार्ड्स क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको दूसरा नाम क्या दिया है? प्लास्टिक मनी, बिकॉज दे आर मेड फ्रॉम मटेरियल ऑफ प्लास्टिक. ओके,
So that's why they are called as plastic money, which is very easy to carry, very easy to swipe, very easy to shop. आप कहीं भी किधर भी लेके जा सकते हो, बस आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, उतना आप डेबिट कार्ड से इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड के लिए तो अकाउंट में पैसे होने की भी जरूरत नहीं है, आप जितना चाहे उतना शॉपिंग करो, लेकिन आपको 45 डेज के अंदर उसको पूरा पेमेंट वापस भरना पड़ेगा. ओके, नहीं तो इंटरेस्ट लगता है, विच इज वेरी हाई. सो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स आर कॉल्ड एज प्लास्टिक मनी. Plastic money is easy to use transaction due to advanced technology. Debit cards and credit cards are used as plastic money. Further innovations in smart transactions led to the transactions of electronic money. Okay, so जैसे हम लोग देख रहे हैं इवोल्यूशन मनी का कैसे हुआ, कॉइन्स, करेंसी, ठीक है, बैंक मनी, प्लास्टिक मनी, और उसके बाद आज हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मनी. आज हमारे पास सब कुछ ट्रांजैक्शंस हमारे पास हमारे हाथों में है. ठीक है, हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन आज कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं, वी कैन डू इट विद इन आवर रीच. ओके, वो हमारे मोबाइल के अंदर आ चुका है, पूरी दुनिया हमारे मोबाइल के अंदर आ चुकी है. बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, नेट बैंकिंग, मोबाइल ट्रांसफर, एवरीथिंग टुडे वी कैन डू विथ मोबाइल. तो यह जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, मोबाइल से आप सब कुछ कर सकते हो, मोबाइल से आप पेमेंट भी कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पे मोबाइल के ऊपर एक चेक का फोटो भी रखा है मैंने, जो आपको बैंक मनी के अंदर एग्जाम्पल में आप देख सकते हो उसको. चेक यहाँ पे इस बात हो रही है मोबाइल की, तो मोबाइल थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हो. E-money or electronic money is monetary value that is stored and transferred electronically through a variety of systems like mobile, phone, tablet, okay, laptop, etc., etc. It is backed by central bank. Electronic money is used for purchase and transactions globally. Digital wallets are also form of stored electronic money. आज की तारीख में तो डिजिटल वॉलेट्स भी आ चुके हैं. वर्चुअल वॉलेट जिसको कहते हैं, वर्चुअल मनी जिसको कहते हैं, आपके पास उसका लॉगिन करना पड़ता है, उसका अकाउंट होना चाहिए सिर्फ. आप वर्चुअल क्रेडिट कार्ड, वर्चुअल डेबिट कार्ड, वर्चुअल मनी भी क्रिएट कर सकते हो, और वो खत्म होने के बाद वो वर्चुअली खत्म हो जाता है. वो सिर्फ नेट स्पेस में रहता है, वो आपको फिजिकली नहीं होता है, वो सिर्फ वर्चुअल होता है. तो आज की तारीख में ये भी आ चुका है टेक्नोलॉजी. ओके, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से एक स्टेप आगे वर्चुअल डेबिट कार्ड, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड, विच आर मेड इन इंटरनेट एंड विच आर एक्सपायर्ड इन इंटरनेट आफ्टर यू फिनिश योर ट्रांजेक्शन और फिनिश योर अमाउंट विच इज देयर इन दैट. ओके, सो ये सब कुछ टेक्नोलॉजी, आगे चल के क्या टेक्नोलॉजी आएगी वी डोंट नो, बट till now all this evolution of money which we have seen, which you know practically also, which you may have used also, your parents may be using it. Okay, तो उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, now moving ahead, ये जो आपको बड़ा क्रॉस दिख रहा है, ये क्या है, नीचे क्या था, यू शुड नो का एक कॉलम था, देखो एक ब्लॉक था, और नीचे क्या है, क्वालिटीज ऑफ मनी. तो एक क्वालिटीज ऑफ मनी, यू शुड नो, ऊपर से लेके यहाँ तक नीचे तक क्वालिटीज ऑफ मनी, ये पूरा ब्लॉक. ठीक है, ये जो पूरा ब्लॉक दिख रहा है आपको, ये यू शुड नो वाला, क्वालिटीज ऑफ मनी वाला, ये पूरा पार्ट, ये आपको नहीं करना है. क्यों नहीं करना है, बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बताया, पहले चैप्टर में भी बताया, क्या चीज़ को क्रॉस मारना है, क्या चीज़ को ओमिट करना है. बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने नोटिफिकेशन जारी किया था जुलाई में कि 25% से आपका सिलेबस क्या हो गया है, रिड्यूस हो चुका है. तो उस रिडक्शन में ये आता है. ओके, तो आपको ये अपने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 11 खोलना है. अभी अगर आपके पास हो तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 11 खोल के ये जो पार्ट है उसके ऊपर पेंसिल से, पेन से मत करना भाई प्लीज. ओके, पेंसिल से, आई रिक्वेस्ट, विथ ओनली पेंसिल आप उसको कट कर दीजिए, क्रॉस मार दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन पेंसिल से कीजिए. क्यों, बिकॉज अगले साल ये बुक्स अगर आप किसी को दोगे तो उसको जरूरत पड़ेगा. अगले साल कुछ ये 25% रिडक्शन नहीं होने वाला है, अगले साल पूरा पोर्शन आएगा. This year, because of COVID-19, because of this pandemic, they have reduced the portion. और आगे चल के और भी रिड्यूस हो सकता है, we don't know. तो लेकिन जब तक अभी तक हम लोग को पता है इतना रिड्यूस हुआ है, उसको आप पेंसिल से क्या कीजिएगा, क्रॉस मार दीजिएगा, ओमिट लिख दीजिएगा, कुछ भी करिएगा, पेन से मत कीजिएगा, क्योंकि अगले साल किसी को बुक काम आएगी. अगर पेंसिल से होगा तो रब करके वो यूज कर सकता है. ओके, सो दिस पार्ट इज नॉट गोइंग टू बी टीच्ड इन कॉलेज और नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स. ओके, तो ये सब कुछ एग्जाम में आपको पूछा नहीं जाएगा. जो भी मैंने क्रॉस मारा है पहले के चैप्टर में भी किया था, यू कैन गो टू माई प्रीवियस वीडियो ऑफ 11th इकोनॉमिक्स कॉमर्स चैप्टर नंबर 1, उसमें भी मैंने बताया आपको, इसमें भी आपको नहीं करना है. ओके, ऊपर देखो कंटिन्यू है, जो पार्ट नहीं करना है वो यहाँ पे भी है, पेज नंबर 12. अगेन अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो पेज नंबर 12 देखिए, पॉइंट नंबर 6 and 7 उसको भी कट कर दीजिएगा. दैट इज जस्ट द पार्ट जो क्वालिटीज ऑफ मनी है उसका ही पार्ट कंटिन्यू है यहाँ पे. पीछे जो हम लोग ने 5 पॉइंट देखा उसका 6 and 7 पॉइंट यहाँ पे है, उसको भी नहीं करना है. पूरा क्वेश्चन ये नहीं करना है, क्वालिटीज ऑफ मनी जो है उसको पढ़ना नहीं है, उसको आप क्रॉस मार सकते हो पेंसिल से. ओके,
Now last part of this chapter, the last part and the last important part, or the you can say long question में आ सकता है, short note में आ सकता है, what are the functions of money, यानी मनी के फंक्शंस क्या है. अभी फंक्शंस ऑफ मनी तो सब जानते हैं कि मनी क्या काम करता है, बट टेक्निकली इकोनॉमिकली मनी के फंक्शंस क्या है, विच वी हैव बीन बाइफरकेटेड इन 3 पार्ट्स. ओके, पहला पार्ट क्या है, प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी यानी सबसे बेसिक फंक्शन. सेकंड क्या है, सेकेंडरी फंक्शन. ए बी सी देख सकते हो आप. ए में क्या है, प्राइमरी फंक्शन. बी इज सेकेंडरी फंक्शन एंड लास्ट इज व्हाट, कंटिंजेंट फंक्शन. कंटिंजेंट, नाउ व्हाट डज कंटिंजेंट मींस. कंटिंजेंट मींस विच इज रिलेटेड टू फ्यूचर. ओके, जो फ्यूचर से रिलेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिंजेंट फंक्शन. वो जब पॉइंट्स देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा. लेट अस सी प्राइमरी फंक्शंस क्या है. प्राइमरी फंक्शन सबसे बेसिक फंक्शन ऑफ मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी इज यूज फॉर व्हाट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज. कोई भी कमोडिटी को ट्रेड करते हो तो उसके पीछे क्या होता है, मनी. ओके. सेकंड, मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट. मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल हर कंट्री के अंदर मनी को एक नाम दिया गया है. जैसे इंडिया में हम लोग करेंसी को क्या बोलते हैं, रुपीज. यूएसए में क्या कहते हैं, डॉलर्स. ओके, यूके में क्या कहते हैं, पाउंड. यूरोप में क्या कहते हैं, यूरो. सो यू कैन सी हियर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसी. यूरो है, डॉलर है, अपना रुपी का साइन है वहां पे. ओके, सो ऑल दिस आर यूज्ड एज मेजर ऑफ वैल्यू. ओके, वही चीज आपको लिखना है. तो ये दो चीजें आप कहाँ किस में आएगी, प्राइमरी फंक्शन में. सेकेंडरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन के अंदर देखिए, सेकेंडरी फंक्शन इज, पहला फंक्शन क्या है, स्टैंडर्ड और डिफर्ड पेमेंट. स्टैंडर्ड पेमेंट पहले ही देखा, डिफर्ड पेमेंट भी हम लोग ने पहले ही देखा. ओके, तो ये सब के लिए आपको पैसा काम आता है. मनी इज यूज्ड फॉर डिफर्ड एंड स्टैंडर्ड पेमेंट. वहां पे लिखा है नीचे, मनी हैज ओवरकम दिस डिफिकल्टी. Payments to be made at a future date is called as deferred payment. By saving standard measure of payment over a time, money makes borrowing and lending easy. Okay, so जो पैसा आपके पास है वो आप स्टोर करके, सेव करके उसको डिफर्ड पेमेंट के तौर पे यूज कर सकते हो. स्टोर ऑफ वैल्यू, यस यू कैन स्टोर योर मनी. पुराने ज़माने में बैंक नहीं हुआ करते थे, फिर भी लोग घर में स्टोर करते थे ना, घर के अंदर स्टोर करते थे, घर के नीचे खजाना छुपाते थे. ओके, आपने देखा होगा. ठीक है, तो स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. मनी नॉट ओनली सेटिस्फाई वांट्स ऑफ प्रेजेंट बट ऑल्सो मेक्स प्रोविजन फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स इन फ्यूचर. तो फ्यूचर के लिए हम लोग को मनी आज क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा. सो लॉर्ड जे.एम. केन्स भी वही बोलता है, मनी इज अ लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, money enables transfer of value from one person to another, from one place to another. Okay, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास पैसा है तो उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो कहीं पे भी. यस, अगर आप पैसा है तो उसको अलग मोड में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. यस, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कैश है, आपको कुछ ज्वेलरी खरीदनी है. यस, कैश था, ज्वेलरी ले लिया, तो कैश किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, ज्वेलरी. आई हैव मनी इन माई बैंक अकाउंट, आई परचेस्ड अ फ्लैट और अ शॉप. ओके, सो मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैंक मनी टू रियल एस्टेट मनी. ओके, सो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ मनी हो रहा है. तो यहाँ पे वही लिखा एग्जाम्पल के अंदर, वन कैन सेल एनीथिंग एंड बाय इट फ्रॉम मनी. ओके, सो ये पूरा स्टैंडर्ड प्राइमरी फंक्शन में था, सेकेंडरी फंक्शन में था. नाउ लास्ट सी, कंटिंजेंट फंक्शन. कंटिंजेंट फंक्शन में सबसे पहला है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. यहाँ पे हम लोग पूरा नेशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं. मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. So national income is expressed in money terms. Distribution of national income among the 4 factors of production, that is wages, interest, profit, etc., rent, etc. ये हम लोग ने पहले चैप्टर में भी देखा था. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. ओके, तो इन चारों को जो मिलता है वो लास्ट लाइन में लिखा है वहां पे, रेंट. रेंट किसको मिलता है, लैंड को. ठीक है, वेजेस किसको मिलता है, लेबर को. इंटरेस्ट किसको मिलता है, कैपिटल को, कैश को. एंड प्रॉफिट्स किसको मिलता है, बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर को. ओके, तो ये सारी चीजें मेजरमेंट करने में हम लोग को आसानी होती है. सेकंड, बेसिस ऑफ क्रेडिट. कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट मनी ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट्स. मनी प्रोवाइड्स लिक्विड बेस फॉर क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी. सो पूरे कंट्री में जो बेस बनता है क्रेडिट का, जो पैसा घूमता है मार्केट में, हम लोग बोलते हैं ना मार्केट में पैसा कैसे घूमता है, बिकॉज ऑफ क्रेडिट मनी, बिकॉज बैंक्स क्रिएट क्रेडिट मनी. इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू वेल्थ. Money is called as the most liquid asset. Money can be easily converted into any asset and any asset can be converted into money. Example, person can sell or purchase gold if he wants. He can sell it and purchase government bonds, securities, etc. मेरे पास सोना गोल्ड पड़ा हुआ है, उसको बेच के मैं प्रॉपर्टी खरीद लूँ, तो I have made my money liquid. Okay. फोर्थ, एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स. जो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, टोटल कंट्री की बात होती है, टोटल सेविंग्स, नेशनल सेविंग्स, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी, जीएनपी, एवरीथिंग. ओके, तो ये सारी चीजें
को डेटा को असेंबल करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए हम लोग को क्या मदद करता है? मनी। ओके, सो ये पूरे पॉइंट्स जो थे वो किसमें थे? फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको 3 फंक्शंस करने हैं, वी हैव सीन इट अर्लियर, primary function, secondary function and contingent function. Okay, so it can be asked in a complete way, what are the functions of money, or it can be asked in parts. पार्ट में कैसा पूछ सकते हैं? एक्सप्लेन व्हाट इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन, बस 2 ही पूछ सकते हैं। या फिर अलग से कंटिंजेंट फंक्शन ज़्यादा है तो अलग से उसका क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द कंटिंजेंट फंक्शंस ऑफ मनी। लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू ब्लैक मनी। पहले ही मैंने बताया इसमें लास्ट पार्ट एक ब्लैक मनी का आएगा। वी हैड सीन अर्लियर के करेंसी का कैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था। नवंबर 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन किया था। और ये सिर्फ नवंबर 2016 में ही नहीं हुआ था, 1970s में भी हुआ था। उस जमाने में भी बड़े डिनोमिनेशंस की नोट्स हुआ करती थी, 10,000 1,000 की भी हुआ करती थी, उसको भी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। ओके, तो ये कोई नई बात नहीं थी। लेकिन 2016 में, ठीक है, 1000 और 500 की नोट्स बैन कर देने के पीछे जो रीजन था वो यही था, ब्लैक मनी। ओके, सो नाउ व्हाट इज ब्लैक मनी? ब्लैक मनी का मतलब ये नहीं कि करेंसी विच इज ब्लैक इन कलर, नो। ओके, ब्लैक मनी का मतलब क्या होता है? देखिए पहली लाइन में लिखा है, ब्लैक मनी इज एनी मनी विच इज रिसीव्ड इन कैश बट नॉट अकाउंटेड फॉर एंड ऑन विच टैक्स इज नॉट पेड टू द गवर्नमेंट। ओके, टैक्स बचाने के लिए आपको ऐसा ट्रांजैक्शन करते हो, ठीक है, टैक्स बचाने के लिए जिससे आपको फायदा होता है, गवर्नमेंट को नुकसान होता है, उसको क्या कहते हैं? ब्लैक मनी। एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक लैंड थी, जमीन थी, ओके, उसकी वैल्यू 50 लाख की थी, मैंने 50 लाख में बेचा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में मैंने सिर्फ 25 लाख बताया, तो मैं टैक्स कितने पे करूंगा? 25 लाख पे। लेकिन मुझे कैश कितने मिले? 50 lakhs. ओके, अलग से मुझे कितने मिले? 25 lakhs. I got more. Okay, which is not accounted for in any government records. Okay, so I have not paid tax on that income or on that value. So उसको वो 25 lakhs जो एक्स्ट्रा मेरे पास आए हैं वो कहाँ जाएंगे? ब्लैक मनी के अंदर। ओके, सो ब्लैक मनी जितना मार्केट में सर्कुलेट होता है उसकी वजह से गवर्नमेंट को नुकसान होता है, टैक्स गवर्नमेंट को कम मिलते हैं। ओके, गवर्नमेंट को टैक्स कम मिलेंगे तो गवर्नमेंट आगे चल के, ओके, उनके जो पॉलिसीज है उसको लागू नहीं कर पाएगी अच्छी तरीके से। सो और इंडिया में भी आज की तारीख में जो इनकम टैक्स पे करने वालों की भी संख्या है, परसेंटेज है, वो बहुत कम है। 4 to 5% पीपल इन इंडिया पे इनकम टैक्स। ओके, आपको जानकर हैरानी होगी, यस, ओनली 4 to 5% ऑफ पीपल इन इंडिया पे लीगल इनकम टैक्स। लीगल अपनी फाइल करते हैं हर साल। ओके, सो दैट नंबर इज वेरी लेस कंपेयर टू अदर डेवलप कंट्रीज। अगर आप देखो तो इंडिया में ये परसेंटेज बहुत कम है। ओके, इट कैन बी अर्नड, ब्लैक मनी इज टैक्स इवेडेड मनी, इट कैन बी अर्न थ्रू बोथ लीगल एंड इलीगल मीन्स। ब्लैक मनी encourages illegal activities such as corruption, bribery, black marketing, hoarding, etc. होर्डिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक व्यापारी हूँ, ठीक है, वेजिटेबल्स का, लेकिन मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है तो मैं क्या करूँगा? फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा महंगाई की वजह से कभी कभी दाल की प्राइस 100 रुपये पर किलो पार कर जाती है, अनियंस 100 रुपया किलो पार कर जाते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं उसको होर्डिंग करते हैं। ओके, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग ऐसा करते हैं, बट करने वाले ऐसा करते हैं, होर्डिंग्स करते हैं। और होर्डिंग करने के बाद जब उसकी प्राइस बढ़ती है, एक लेवल पे आ जाती है, तब वो पूरा माल निकाल देते हैं और प्रॉफिट कमा लेते हैं। This creates obstacles in economic development. Economic, political, social instability are created in economy due to black money. To control black money, demonetization is one of the tools which many countries have adopted. In India is also adopted in 2016, as I said earlier. Demonetization का मतलब क्या होता है? बड़ी डिनोमिनेशन नोट को बंद कर दो या चेंज कर दो, उसको डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। तो 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उस टाइम पे कुछ हद तक हम लोग ने ब्लैक मनी को कंट्रोल किया था, कुछ हद तक टेररिस्ट फंडिंग को भी कंट्रोल किया था। तो उसके लिए, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन किया जा सकता है, विच जो फेक करेंसी होती है उसका भी बिजनेस बंद हो जाता है डिमोनेटाइजेशन होने की वजह से, क्योंकि पुरानी करेंसी बंद हो जाती है तो फेक करेंसी बनाने वाले का भी धंधा ठप हो जाता है। ठीक है, तो कहने के लिए डिमोनेटाइजेशन कैन बी मेड सक्सेसफुल इन मैनी वेज। ओके, सो ये पूरा चैप्टर आपको मनी के ऊपर था, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। इट्स अ वेरी इजी, वेरी स्मॉल एंड वेरी प्रैक्टिकल चैप्टर। यू कैन गो थ्रू द चैप्टर। ओके, और जैसे मैंने बताया आपको ये चैप्टर करने के बाद, ठीक है, उसके जो एक्सरसाइज होगा उसको देखिए, ट्राई कीजिए मार्क करने के लिए। अदरवाइज प्लीज इनबॉक्स मी, आई विल गेट यू ऑल द आंसर्स फॉर द एक्सरसाइज। ओके, टिल देन टेक केयर, बी सेफ,